Now the next part of the alimentary canal is the tongue. Tongue is a muscular or a non-muscular fleshy structure which is present in the buccal cavity. So in vertebrates there is a large number of variation in the tongue. So the first animal of vertebrata includes the lamprey or the cyclostomes. The cyclostomes, they have a thick fleshy tongue and it acts as a rasping organ. These are the blood sucking animal, so they have the teeth which are horny, or the epidermal teeth also, which are present over the tongue. Next, coming to the fishes have the primary tongue. Now what is the primary tongue? Primary tongue is that tongue which is only a fleshy fold. ठीक है, ये सिंपल एक फ्लैशी फोल्ड होता है और टंग जो होती है उसमें कोई भी मास्कुलेचर नहीं होता है, जिसकी वजह से टंग की मूवमेंट जो है वो नहीं होती है. ठीक है, तो टंग अगर मूवमेंट नहीं होगी तो टंग की मूवमेंट मसल्स के कारण नहीं होगी, तो कैसे होगी? इट इज मूव्ड विद द हेल्प ऑफ द हायर एपरेटस. जो हायर एपरेटस जिसके साथ टंग अटैच होती है उसकी मूवमेंट से टंग की मूवमेंट होती है. अदरवाइज इटसेल्फ इट डोंट हैव द मास्कुलेचर फॉर द मूवमेंट ऑफ द टंग. And the tongue also have the sensory receptors. Now next are the amphibians. In amphibians there are some aglossal anurans. Aglossa, the glossa word is used for the tongue. So some animals belonging to amphibians are aglossal. Aglossal means they don't have the tongue, and they are also anuran. Aglossal anuran are those amphibians which are tailless, such as your frog. So some frog-like amphibians, they are having the tongue which is not there, means the tongue is absent in such type of animals. Whereas the other amphibians, the tongue is very much well developed, such as salamanders. Salamanders are what? These are the tailed amphibians. So the tongue here is non-musculature and sensory, like that of fishes. Whereas in the other amphibians the tongue is protusible. बहुत सारे amphibians में tongue जो होती है वो protusible होती है, कईयों में जो होती है वो non protusible होती है. तो tongue जो protusible है वो उसमें कुछ muscles present होते हैं, such as protector and retractor muscles, with the help of which the tongue can be moved to the inner and the outer side of the mouth, and such tongue is called as the definitive tongue. ठीक है, और अगर हम यूरोडेल्स की बात करें तो यूरोडेल्स में टंग्स जो होती है वो अगेन हायर्ड एपरेटस से और साथ में जो हायर्ड आर्च है उससे सपोर्टेड होती है. नाउ कमिंग टू दी रेप्टाइल्स दे सच एज योर क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स. क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स की बात करें तो उनमें जो टंग होती है वो नॉन प्रोड्यूसिबल होती है, मीन्स द टंग दैट कैन नॉट बी टेकन आउट फ्रॉम द माउथ. Whereas the snakes and lizards, हमने सबने देखा कि स्नेक्स और लिजर्ड्स की टंग जो होती है वो काफी ज्यादा प्रोड्यूसिबल और वेल डेवलप होती है. अगर इसकी बात करें, दिस इज द कैमलियन दैट हैव अ वेरी लॉन्ग प्रोड्यूसिबल टंग विच इज prehensile also. Prehensile means when the tongue is also used for holding some substance. तो twigs, जिन twigs के ऊपर, जिन trees के ऊपर ये रहती है, उन ट्विग्स को होल्ड करने के लिए भी जो है वो टंग का ये यूज करती है. नो डाउट इट इज यूज टू कैच द प्रे, एंड ड्यू टू इट्स लॉन्ग लेंथ इट इज ऑल्सो यूज टू होल्ड द डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज द ट्विग्स. Whereas in case of the lizards, the other lizard, the tongue is bifurcated. For example, this is the Varanus, the monitor lizard. It have the bifurcated tongue, and in case of the snakes also, the tongue is bifurcated. Right, now coming to the birds have also the immobile tongue, means the tongue that cannot be moved because it don't have the muscles. ठीक है, तो यहाँ पर भी जब आपकी टंग खुद मूव नहीं कर सकती ड्यू टू द लैक ऑफ मस्कुलेचर, द हायर एपरेटस इट्स पोजिशन चेंज इन पोजिशन दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द टंग. ठीक है, और कुछ बर्ड्स में भी जो टंग होती है वो बाइफर्केटेड होती है. नाउ कमिंग टू द टंग ऑफ द मैमल्स. Tongue of the mammals, they have the most well developed tongue. So let's see the diagram of the mammalian tongue. The tongue of the mammal that have the muscles so that the tongue can be moved easily. हम अपनी टंग को बहुत अच्छे से जो है वो मूव कर सकते हैं. ठीक है, इसमें डिफरेंट जो पैपिले भी प्रेजेंट होते हैं, जिन पैपिले की वजह से जो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो टंग परफॉर्म करती है.
ठीक है, such as the fungiform papillae or the filiform papillae and the circumvallate papillae. All these papillae, they perform the different functions, and they make the tongue of the mammals very much special. And we have the different areas for the reception of the different type of taste, such as अगर टंग के पीछे की ओर जाएं तो यहाँ पे आपके बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स होते हैं. अगर साइड्स पे देखें तो सोर, और थोड़ा सा पीछे की ओर साल्टी, एंड एट द मोस्ट द anterior most part that have the receptors which are meant to detect the sweet taste. Now if we talk about the functions of the tongue that help in the movement of the food within the buccal cavity, it help in the mixing of the food with the saliva, which consists of the different enzymes such as salivary amylase. It help in the speech, and it also help in cooling of the body temperature. जैसे dogs का आपने देखा होगा, the dogs, they keep their tongue out and they keep their tongue out during the hot conditions. जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो डॉग्स अपने टंग से जो वो हमेशा बाहर ही रखते हैं. सो दैट्स व्हाई द टंग ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द बॉडी temperature. Now the next important structure which is present in the mouth is the teeth. Now teeth are the hard structure, and that may be epidermal or may be dermal in origin, and no doubt they are present in the buccal cavity. So there are two types of the teeth on the basis of origin. One are the epidermal teeth and another are the tooth teeth, or which are dermal in origin. नो एपिडर्मल टीथ मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि एपिडर्मल टीथ वो होते हैं जो आपके एपिडर्मस से बने होते हैं, ठीक है. और साइक्लोस्टोम्स जो हमारे राउंड माउथ वाले जो हमारे एनिमल्स थे, ये वाले साइक्लोस्टोम्स, दे हैव द एपिडर्मल टीथ, ठीक है, जो इसके बकल कैविटी में प्रेजेंट है एंड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द टंग ऑफ दिस एम्फीबियन. इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे अदर एनिमल्स हैं उनमें टीथ जो होते हैं वो आपके डर्मल टीथ होते हैं. एंड सम एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर, सच एज दी एम्फीबियंस जो टैडपोल्स हैं, एम्फीबियन टैडपोल है, उनपे भी जो टीथ, उनके जो जॉज होते हैं वो भी एपिडर्मल होते हैं. एंड वन मोर एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज दी डक बिल प्लैटिपस. प्लैटिपस जो है उसके भी जो टीथ है जो है वो एपिडर्मल नेचर के. नाउ कमिंग टू द ट्रू टीथ. Now, true teeth are present in all gonathostomes. So, gonathostomes includes the animals which have the true teeth or the jaw, which are true in nature. Except किसमें नहीं होंगे, आपके कुछ toads हैं और आपके turtles and the modern birds. ठीक है, तो टर्टल्स और मॉडर्न बर्ड्स इनमें बीक्स होती हैं, तो इसकी वजह से इसमें जो आपके टीथ है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट. Now there is a similarity between the dermal plates of the fishes, that is the scales. जो fishes के scales होते हैं और teeth जो है वो थोड़े से similar होते हैं. So it is believed that the teeth of the vertebrates that have been evolved from the scales of the fishes, although they have some similarities and some differences are also there. Now coming to the structure of a true teeth. So this is a teeth which is actually the incisor of man. So teeth that have the three parts. The outermost part is the crown, then is the neck, and the innermost is the root. The outermost part of the teeth, that is covered by enamel. Enamel is the hardest substance of your body. Then below the enamel we have the dentine. Now this dentine is actually बोन लाइक सब्सटेंस. ये इनेमल से थोड़ा सा कम हार्ड होता है लेकिन बोन से कंपैरेटिवली ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है. सो इनेमल इज द हार्डेस्ट वन, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी में जो हार्ड होता है वो होता है डेंटाइन. डेंटाइन के बाद जो अगला हार्ड सब्सटेंस है दैट इज द बोन. उसके बाद आपके नीचे एक लेयर आ जाएगी, लेयर ऑफ द ओडोंटोब्लास्ट. दिस ओडोंटोब्लास्ट लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ द, ये जो इसमें जो सेल्स होंगे दे एक्चुअली सिक्रीट द डेंटाइन, ठीक है. उसके बाद हमारा नीचे आ जाएगी आपकी पल्प कैविटी. पल्प कैविटी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पल्प कनाल से. इसके नीचे पल्प कनाल होता है, पल्प कनाल में ऊपर चल के पल्प बनेगा आपका. एंड दिस पल्प, this is the innermost part which actually consists of the blood vessels, connective tissue and the nerves which innervate the teeth. Now coming to the neck is covered by a fleshy
लेयर ऑफ द स्किन कॉल्ड एज दी गम, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा रूट। नाउ व्हाट इज रूट? रूट वो वाला पार्ट है जो कि आपके सॉकेट में एम्बेडेड है। अगर हम अपने टीथ की बात करें तो द टीथ of the mammals they are heterodont and the thecodont, that means they are embedded in the socket. So root वाला part जो है वो socket के अंदर जुड़ा हुआ होता है and it is attached with the help of the cellular cement which is a cement like substance. Sorry. Now next is the dentition. ये डेंटिशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो हम थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे. सो देयर आर 3 types of the teeth on the basis of the mode of the attachment. The first type of the teeth is the acrodont. Acrodont teeth are those teeth which don't have the root. ये जो स्ट्रक्चर हमने टिपिकल टीथ में देखा जिसमें कि टीथ जो था वो एम्बेडेड था आपके जॉ बोन के अंदर, वो रूट वाला स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होगा. तो इस तरह के टीथ विच डोंट हैव द रूट्स आर कॉल्ड एज द एक्रोडोंट टीथ. दीज आर प्रेजेंट इन द शार्क्स एंड द एम्फीबियंस. ये टीथ इजिली ब्रेक हो जाते हैं और फिर एकदम से नए टीथ जो है वो आ जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ आर द प्लूरोडोंट. So the pleurodont teeth are the teeth which are attached to the inner surface of the jawbone. थोड़ा सा ये पूरी तरह से अटैच नहीं है लेकिन जॉ बोन जो है उसके इनर साइड पे जो है वो अटैच होते हैं. एंड दीज आर प्रेजेंट इन दी tailed amphibians called as the urodels and the lizards. Now the next type of the teeth and the most important one are the thecodont. तो thecodont teeth कौन से हैं? जैसे हमारे teeth होते हैं, that is the teeth is properly embedded within the this structure that is your jawbone. jawbone में पूरी तरह से socket बना होता है और socket के अंदर जो हमारे teeth जो होते हैं वो present होते हैं. So this part which is embedded in the socket is called as the root of the teeth, and such type of teeth that is the thecodont teeth are present in the mammals, crocodiles and even the Archaeopteryx, that was the lizard bird. जो आपका connective link है between the birds and the reptiles that also have the thecodont type of teeth. Now next is the type of the teeth on the basis of the shape. Some animals have the homodont teeth. Homodont teeth are the teeth which are all having the same shape. So such teeth are the homodont. तो सभी के सभी वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सबके टीथ जो होते हैं वो होमोडोंट होते हैं एक्सेप्ट बर्ड्स. बर्ड्स में तो बीक होती है तो टीथ तो कहां से आएंगे, लेकिन बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं दे ऑल हैव द टीथ विच आर ऑल सिमिलर. Now the next type of the teeth are the heterodont. Heterodonts means different type of teeth. So the different types of teeth are present in case of the mammals, जिसमें कि incisors, canines, premolars and molars are there. Now type of teeth on the basis of the succession or the replacement. So polyphyodont teeth. Polyphyodont teeth are those teeth which are replaced again and again and again so that their jaws are never without the teeth. Next are diphyodont. Diphyodont, most of the mammals have the teeth which are like this. ठीक है, तो polyphyodont जो है वो बाकी vertebrates में होंगे और जो mammals हैं, most of the mammals they have the diphyodont teeth, means the teeth they come in 2 sets. The first set is called as the milk teeth and the second set is called as the permanent teeth which remain throughout the life. Now the next is the monophyodont teeth, that the certain animals such as your sphenodont and the whales, marsupials, they have only one set of teeth. एक ही बार टीथ आते हैं और वो कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं. ठीक है, तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ आर दी ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन. सो कहाँ पर लोकेटेड है उस बेसिस पे टीथ जो वो इस तरह के होते हैं जैसे कि जो हमारे ट्रू टीथ होते हैं, जो हमारे रियल टीथ होते हैं, दीज आर बोर्न ऑन द प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड द मैंडिबल्स. सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, मैंडिबल्स, जब हम स्कल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्लास में तो हमें इनकी जो पोजीशन है उसका पता लगेगा. ठीक है, इसके अलावा भी कई टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वॉमर पे तो उसको वॉमराइन टीथ बोलेंगे. अगर पैलेटाइन पे प्रेजेंट है तो पैलेटाइन टीथ बोलेंगे. टेरिगॉइड पे है तो टेरिगॉइड टीथ बोलेंगे. तो ऑन द बेसिस कि टीथ कहां पर प्रेजेंट है उसका नाम टीथ का उसी से ही ले दिए गए. जैसे कि मैक्सिलरी टीथ आर द टीथ विच आर बोर्न ऑन द बोन विच इज मैक्सिला. मैंडिबुलर टीथ आर दोज टीथ विच आर बोर्न ऑन द मैंडिबल्स. नाउ नेक्स्ट इज द डेंटल फॉर्मूला. डेंटल फॉर्मूला हमें बहुत पहले से ही पता है कि जो टीथ होता है वो चाहे आपके अपर
जॉज हो चाहे लोअर जॉ हो, उसका 1/2 जो है वो हम ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द मैन it is 2 1 2 3 2 1 2 3. The upper half that have 1/2 that have 2 incisor, 1 canine, premolar and the molars. तो ये टोटल हो गए हमारे 16 और 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट अ मैन दैट मे हैव दी 32 टीथ. सो ये डेंटल फॉर्मूला आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है. थोड़ा सा आपने इसकी ओर ध्यान देना है. कई बार डेंटल फॉर्मूला जो है वो एलिफेंट का या आपका हॉर्स का, ये डेंटल फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं. नाउ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द डेंटिशन. साइक्लोस्टोम, जैसे पहले बोल दिया आपको कि टू ट्रीथ, जो ट्रू ट्रीथ है जो डर्मल ओरिजिन के होते हैं वो एब्सेंट होते हैं एंड दे हैव द एपिडर्मल टीथ. द टीथ इन द फिशेस दे आर एक्रोडोंट. बता दिया आपको एक्रोडोंट क्या होता है. पॉलीफाइडोंट एंड द होमोडोंट, दैट मीन्स दे ऑल आर ऑफ सेम साइज. पॉलीफाइडोंट मीन्स दे आर रिप्लेस्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड एक्रोडोंट दैट मीन्स दे आर रूटलेस टीथ, दैट इज दे आर सुपरफिशियल, इस तरह के कि जो अटैच नहीं होते, जिनकी रूट नहीं होती. ठीक है. ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गार्पिक एक फिश है उसमें थिकोडोंट टीथ होते हैं. तो थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस जो है वो हमेशा ही रहेंगे. अदरवाइज टीथ जो है वो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जिस तरह के एक सेट पैटर्न है उसी में उस तरह के टीथ होते हैं. तो द नेक्स्ट है द एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आल्सो हैव द एक्रोडोंट, पॉलीफाइडोंट एंड द होमोडोंट टीथ. सॉरी. Next, reptiles. Reptiles have the homodont and the polyphyodont teeth. Next, the poison fangs. The poison fangs, the special teeth which are present in the snakes. आपका जब ये लेसन आएगा, that is the reptiles, जब आप एनिमल डाइवर्सिटी में करेंगे तो उसमें आप डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे फैंग्स का, टाइप्स ऑफ द फैंग्स एंड द बाइटिंग मैकेनिज्म. तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर आपको जो है वो टीथ का आएगा. सो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं. व्हाट आर दी पॉइजन फैंग्स. पॉइजन फैंग्स आर एक्चुअली द मैक्सिलरी टीथ. सो पॉइजन फैंग्स आर एक्चुअली द मैक्सिलरी टीथ. Maxillary teeth because they are born on the bone, that is the maxilla, and rather they are the modified maxillary teeth. ठीक है. तो उसका अगर हम टीएस देखें तो कुछ इस तरह से टीएस होता है एक पॉइजन फैंग का. यहाँ पर जो इसकी आउटर लेयर होती है दैट इज हैविंग द डेंटाइन. डेंटाइन है और उसके बीच में इसकी पल्प कैविटी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे टीथ में होती है. आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ डेंटाइन एंड द इनर मोस्ट लेयर इज ऑफ पल्प. एंड द सेंटर ऑफ दिस fang is actually the poison canal which is connected to the poison gland. ठीक है. तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम जो है वो फर्स्ट पेपर में करेंगे. नाउ नेक्स्ट आर दी रेप्टाइल्स में जो नेक्स्ट आते हैं वो है टर्टल्स. तो टर्टल्स आर दी टूथलेस रेप्टाइल्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव दी बीक लाइक द बर्ड्स. बर्ड्स में भी जो है वो टीथ नहीं होते हैं except your some exceptions are there such as the archaeopteryx और बाकी कुछ एक टीथ्स हैं बर्ड्स हैं जिसमें कि टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं. आर्कियोप्टेरिक्स मैंने पहले आपको बता दिया. एंड सम अदर ऑल्सो हैव द बर्ड्स. दीज बर्ड्स हैव ऑल्सो टीथ विच आर थिकोडोंट, विच थिकोडोंट टीथ आर प्रेजेंट इन द मैमल्स. ठीक है. तो ये जो बर्ड्स हैं जिनमें थिकोडोंट टीथ्स हैं, दिस शोज दैट द mammals and birds, they have originated from a common root, right? So the next one is the mammals. Now mammals, most of the mammals have the diphyodont teeth, that means arising in two sets, and the heterodont means the different types of the teeth are there. But some, such as the platypus or the whales, they have the monophyodont conditions. So different types of teeth which are present in mammals are the incisors. Incisors, you all know, these are the cutting teeth and they have the single crown, so that's why they are called as the monocuspid. Now the canine also have a single crown, so they again are monocuspid and have a single root. So canines are more prominently present and more sharp in case of the animals which are carnivorous, which help in the piercing and tearing of their prey. Next are the premolars and molars. Premolars and molars are called as the cheek teeth. These all are the different types of the cheek teeth or the molars which are present in the different vertebrates. So they have more than 2 roots. ठीक है. उसमें रूट्स जो है वो ज्यादा होती हैं हमारी, देख रहे हैं आप, तो रूट्स जो है वो ज्यादा है. एंड
दे आर द ग्राइंडिंग टीथ, वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशन हमको दिखाई गई है, जैसे यहाँ पे ये सिकोडॉन्ट टीथ है, उसमें किस तरह के कटिंग एजेस, शार्प एजेस प्रेजेंट है। जैसे ये आपके हिप्सोडॉन्ट टीथ है, दिस हिप्सोडॉन्ट टीथ आर एक्चुअली प्रेजेंट इन योर हॉर्सेस एंड विच हेल्प इन दी कटिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द ग्रासेस। ऐसे ही आपके ये लोफोडॉन्ट टीथ है, द लोफोडॉन्ट टीथ दीज आर प्रेजेंट इन द एलिफेंट। तो एलिफेंट जो होता है उसमें जो टीथ होते हैं बेसिकली वो सिर्फ ये वाले ही प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दी योर molars are only the teeth which are present in the elephants. So these lophodonts are called so because they have several transverse ridges which are present in the elephant. So these are the some of the modification. इसको आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना है, but you should know that the 4 types of teeth are there in mammals, whereas this, that is the grinding teeth or the cheek teeth, that is the molars and premolars, they are the highly modified and the most modified teeth in case of the mammals. So we have this is the dental formula of different animals. So the dental formula of elephant is also important. This first is the incisor, फर्स्ट इंसीजर, जिससे कि उसकी टस्क बनती है, बाकी उसके टीथ नहीं होते, सिर्फ उसके जो ग्राइंडिंग टीथ है और जिसे आप मोलर्स कहते हैं, वही मोलर्स जो है वो एलिफेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे मैन का ही है, रैबिट का डेंटल फॉर्मूला कई बार जो है वो पूछ लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ द एक्वाटिक बर्ड्स, एक्वाटिक मैमल्स, सो दिस इज द टीथ विच आर शोन इन द डॉल्फिन। डॉल्फिन्स में क्या होता है, these have the हैंगिंग प्लेट्स। ये जो आपके टीथ है एक्चुअली ये क्या है, दे आर दी 300 अप्रोक्सीमेटली हैंगिंग प्लेट्स विच आर कॉल्ड एज दी बैलिन प्लेट्स। दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द बैलिन वेल। ये तो आपके डॉल्फिन का शो किया गया है, लेकिन बैलिन जो वेल है उसमें भी इसी तरह का जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये डॉल्फिन में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। इट इज यूज टू ट्रैप द डिफरेंट प्लैंकटन। ये जो आपकी फिश, ये जो आपकी मैमल है, दैट इज द बैलिन वेल, इट एक्चुअली इज प्लैंकटन फीडर। तो प्लैंकटन्स को ट्रैप करने के लिए इसके इस तरह से फिल्टर के सॉर्ट में ये काम करते हैं। इट गल्प्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद इन इट्स माउथ, द वाटर दैट कम्स आउट एंड द प्लैंकटन्स इट रिमेन इन इट्स माउथ एंड देन इट टेक इट टू द फर्दर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो पानी बाहर आ जाएगा, प्लैंकटन्स अंदर ही रह जाएंगे। सो एक्चुअली ये एक फिल्टर की तरह जो वो काम करते हैं। इस तरह से डॉल्फिन में भी होता है। नाउ द कार्निवोरस एनिमल्स सच एज डॉग्स, दे हैव वेरी शार्प canines that are present, ठीक है। ऐसे हेर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें जो आपके प्रीमोलर्स मोलर्स होते हैं, या उसमें जो ये जो आपके फर्स्ट टीथ हैं मीन्स इंसीजर्स, दे आर ऑल्सो वेरी शार्प बिकॉज दे हैव टू टेक द ग्रासेस। ग्रास को लेने के लिए, ग्रास की कटिंग करने के लिए उनके जो टीथ हैं, जो इंसीजर्स हैं, दे आर यहाँ पे टीथ्स में दी हुई है। जैसे इंसेक्टिवोरस है, उसमें भी आपके टीथ जो है इंसीजर लोअर मॉडिफाई होते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, तो थोड़ा सा आपने इसको देख लेना है, बहुत डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है।